हेलो एंड वेलकम बैक। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉसिबल आउटकम्स दैट इज n of s फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। तो सबसे पहला जो रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया है वो है फ्रॉम अ बॉक्स containing 23 lottery tickets, 3 tickets are drawn। अब यहाँ पे जो वर्ड दिया है drawn that indicates selection। सो यहाँ पर हम n of s ढूंढेंगे with the help of combination। सो स्टेटमेंट आएगा as 3 tickets are drawn, as 3 tickets are drawn from 25 tickets, therefore n of s will be from 25 you select any 3, so 25c3। ये further simplify करते हैं तो ये हो जाएगा 25 into 24 into 23, we write 3 terms in descending order और नीचे 3 factorial, that is 3 into 2 into 1। This if we simplify we get the answer as 2300, so that is n of s। नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स एनी 2 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड। सो बेसिकली यहाँ पे 7 स्टूडेंट्स है, उसमें से हमें 2 का सिलेक्शन करना है। नाउ अगेन सिलेक्शन इंडिकेट्स कॉम्बिनेशन, तो ये भी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सो एज 2 स्टूडेंट्स are selected from 4 boys and 3 girls, from 4 boys and 3 girls, that is 7 students। so total है यहाँ पर है 7 students और इसमें से हमें 2 students का selection करना है। So therefore we could say n of s is from 7 you select any 2, so 7c2। let us simplify this, ये हो जाएगा 7 into 6 upon 2 into 1। so ये simplify करने पर we get the answer as 21। next देखते हैं क्या दिया है। 5 balls are randomly placed into 5 cells such that each cell will be occupied। तो यहाँ पर placing करना है, so basically it is indicating arrangements। so arrangements की जब बात होती है we talk about permutations। so 5 balls are there and 5 cells are there, so let us write down। so 5 balls have to be placed, 5 balls have to be placed in 5 different cells, in 5 different cells। so basically we are indicating arrangements, so we are talking of permutation। so n of s will be 5 and we have to arrange them at 5 different locations। तो ये आ जाएगा 5p5 which is 5 factorial and 5 factorial की वैल्यू होती है 120। तो यहाँ पर number of possible arrangements है 120। let us look at the next one। 6 students are arranged in a row for a photograph। अब यहाँ पर भी clearly indicate हो रहा है हम arrangements की बात कर रहे हैं of 6 students, so we are talking about permutations। so the next case is 6 students are arranged in a row। so 6 students are arranged in a row। so here we are talking of permutation, so therefore we could say n of s
will be 6 and we have to arrange all 6. So 6p6 which is 6 factorial and 6 factorial की value होती है 720. अब एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 5 हम डिस्कस करेंगे. 2 dice are thrown. Write the favorable outcomes for the following events. So when 2 dice are thrown, so as 2 dice are thrown, तो जो sample space होगा उसमें 36 outcomes आएंगे. The outcomes would be 1 1, 1 2, 1 3 and so on up to 6 6. So there would be 36 outcomes, that is n of s would be equal to 36. अब पहला इवेंट दिया है, the sum of the numbers on the two dice is divisible by 3 or 4. इवेंट Q है, sum of numbers on the two dice is 7. R है, sum of numbers on two dice is a prime number. तो अगर ये सैम्पल स्पेस हम देखें, यहाँ जो पॉसिबल सम ऑफ टू नंबर्स जो हो सकते हैं, अब जैसे 1 + 1 you can get a total of 2, then 1 + 2 you can get a total of 3. Similarly, you can also get a sum of 4 or 5 or 6 or 7, 8, 9, 10, 11 and maximum जो total हमें मिलेगा वो होगा 12, right? 6 + 6. So basically ये sum में we are dealing with the sum, that is the total of the two numbers. अब एक एक event हम focus करते हैं. पहला कहा गया है the sum of the numbers on two dice is divisible by 3 or 4. तो event P है the sum is divisible by 3 और 4. यानी हम जो टोटल्स कंसिडर करेंगे तो जो सम होना चाहिए, it could be 3, it could be 4, then it could be 6, that is divisible by 3. फिर 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है सम, then it could be 12. तो ये सब टोटल्स अगर हम देखें, either it would be divisible by 3 और 4. तो इसके आउटकम्स हम लिख लेते हैं, इस इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स. अब सम 3 के लिए it would be 1 2 and 2 1. then सम 4 के लिए 1 के साथ आएगा 3, then 2 के साथ 2 and 3 के साथ 1. Next is sum equal to 6, तो 1 के साथ 5, then 2 के साथ 4, 3 and 3 will give us 6, then 4 and 2 will give us 6, फिर आएगा 5 and 1, ये टोटल 6 आ जाएगा. फिर 8 तो 1 के साथ नहीं आएगा, 2 के साथ आएगा, 2 and 6, the total is 8, then 3 and 5, फिर आएगा 4 and 4, फिर 5 3, this is a total of 8, and then last is 6 2. टोटल 9 चाहिए, तो 3 के साथ 6 will give us 9, then 4 and 5 will give us 9, फिर आएगा 5 and 4 and आखिर में 6 and 3, and last total 12 चाहिए, so that is only one bracket 6 6. तो यहाँ पर n of p अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. सो यहाँ पे 20 फेवरेबल आउटकम्स है. नेक्स्ट पूछा गया है Q में द सम ऑफ टू नंबर्स इज 7. ओके, तो इवेंट Q हम डिफाइन करते हैं, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 7. तो इसके देखते हैं हम कौन से फेवरेबल आउटकम्स आते हैं. तो 1 and 6 यहाँ टोटल 7 आ जाता है,
then 2 5, then we have 3 4, next is 4 3, next we could have 5 2 एंड आखिर में 6 1. तो 1 2 3 4 5 6. So therefore we could say n of q is equal to 6. और इवेंट r अगर हम देखें, the sum of the two numbers is a prime number. Okay, so event r है which says that the sum of two numbers is a prime number. अब देखते हैं जो हमारे पास सम्स जो अवेलेबल है उसमें से टोटल कौन कौन से प्राइम आते हैं. तो ये सारे टोटल्स हमें मिल सकते हैं. इसमें से 2 3 5 7 एंड 11, ये सारे जो टोटल्स है वो एक प्राइम नंबर हमें देते हैं. सो इट कुड बी 2, इट कुड बी 3, देन 5, फिर 7 एंड 11. तो इसके हम ब्रैकेट्स लिख लेते हैं. अब सम 2 का एक ही ब्रैकेट है 1 1, सम 3 के लिए वी हैव 1 2 एंड 2 1, सम 5 के लिए वी हैव 1 4, then we have 2 3, then 3 2 and 4 1. फिर आएगा सम इक्वल टू 7, उसके तो हमारे 6 ब्रैकेट्स है. वी हैव 1 6, then 2 5, नेक्स्ट इज 3 4, फिर आएगा 4 3, फिर आएगा 5 2 एंड आखिर में 6 1. एंड सम 11 के लिए वी हैव 2 ब्रैकेट्स 5 6 एंड आखिर में 6 एंड 5. तो यहाँ पर काउंट कर देते हैं n ऑफ r. ये फिगर आउट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 1, that is 15. So n of r is 15. अब फर्दर यहाँ पे और भी क्वेश्चंस पूछे गए. See what they have asked. Check whether P and Q are mutually exclusive and exhaustive. Okay, तो P and Q का यूनियन करके देखते हैं. अच्छा, पहले एक्सक्लूसिव पूछा है तो पहले P इंटरसेक्शन Q देखते हैं. क्या इनमें कुछ कॉमन है क्या P एंड Q में. यहाँ पे अगर हम देखें, यहीं से आइडिया मिल जाती है. यहाँ पे हमने सम लिखा है 3 4 6 8 9 एंड 12 एंड क्यू में हमने लिखा है सम इक्वल टू 7. तो ऑब्वियसली कुछ भी इसमें कॉमन ब्रैकेट्स तो आने वाले नहीं है. तो इवन इफ वी चेक दीज एंड दीज ब्रैकेट्स ओवर हियर, कोई भी आउटकम कॉमन नहीं है. मतलब इंटरसेक्शन इज अ नल सेट. सो ये नल सेट तो है. सो देयरफॉर वी कुड से P एंड Q दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है. अब पूछा गया है कि ये एग्जॉस्टिव है या नहीं. तो P यूनियन Q देखते हैं क्या इज इट इक्वल टू द सैंपल स्पेस. नाउ क्लियरली वी कैन सी यहाँ पर 20 आउटकम्स है और यहाँ पर 6 आउटकम्स है. तो अगर इनका यूनियन करेंगे तो 26 आउटकम्स ही आएंगे. बट हमारे सैंपल स्पेस में है 36 आउटकम्स. सो ऑब्वियसली P यूनियन Q, this is not equal to the sample space. So therefore conclusion आएगा P and Q are not exhaustive. They are not exhaustive. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है वहां पर. नेक्स्ट पूछा गया है इवेंट्स Q एंड R के बारे में. आर दे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. Q एंड R, तो Q इंटरसेक्शन R करके देखते हैं क्या इनमें कुछ कॉमन है. यस, वी कैन क्लियरली सी यहाँ पर भी सम इक्वल टू 7 के ब्रैकेट्स है. इसमें भी 7 इज अ प्राइम नंबर. तो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन इज नॉट अ नल सेट. यू कैन सी दीज ब्रैकेट्स कॉमन, करेक्ट, जिसमें सम इक्वल टू 7 है. तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है बिकॉज द इंटरसेक्शन इज नॉट अ नल सेट. So therefore Q and R are not mutually exclusive. They are not mutually
एक्सक्लूसिव, और इनका यूनियन चेक करते हैं, Q यूनियन R। अगेन वी कैन क्लियरली सी यहाँ पर इनका अगर हम यूनियन करते हैं तो यूनियन करने पर सैम्पल स्पेस तो हमें नहीं मिलेगा, करेक्ट। Q एंड R का अगर यूनियन करते हैं, दिस इज नॉट इक्वल टू द सैम्पल स्पेस। सो Q union R is not equal to the sample space, so therefore Q and R are not exhaustive. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं है Q and R, एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी ये नहीं है। अब क्वेश्चन 6 डिस्कस करते हैं फ्रॉम 7.1। A card is drawn at random from an ordinary pack of 52 playing cards. State the number of elements in the sample space if consideration of suits is not taken into account, and second case is taken into account. So basically we are talking of the suits over here, and we know there are 4 suits या 4 designs आप बोल सकते हैं या 4 patterns. They are heart, then we have diamond, next suit is spade, और जो चौथा सूट है वो है क्लब। तो पहला केस दिया है सूट्स आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट, सूट्स नॉट टेकन इनटू अकाउंट। तो बेसिकली हमें पूरे पैक ऑफ कार्ड्स में से ही एक कार्ड रैंडमली सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा वो कंप्लीट पैक ऑफ कार्ड्स में से होगा, यानी 52 कार्ड्स में से हम एक कार्ड सेलेक्ट करेंगे। सो फ्रॉम 52 cards you are going to select one card randomly. So in this case n of s will be from 52 you select 1, so n of s आ जाता है 52। और सेकेंड केस कहा गया the suits are taken into account, so the suits are taken into account, लेकिन कौन सा सूट है वो नहीं कहा गया है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, हमें एक कार्ड सिलेक्ट करना है या तो हार्ट में से, या फिर एक कार्ड हम सिलेक्ट करेंगे डायमंड में से, या फिर हमारा जो कार्ड है वो हो सकता है स्पेड कार्ड, या फिर वो हो सकता है क्लब कार्ड। तो सूट वाइज हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ तो पूरे एंटायर पैक में से सिलेक्ट करना है, और यहाँ बेसिकली 4 हमने इसके पास कर दिए सूट वाइज, एंड इट कुड बी एनी वन ऑफ देम। तो यहाँ से हम अगर एक कार्ड लेते हैं सो इट विल बी 13C1। सिमिलरली यहाँ से अगर हम डायमंड कार्ड लेते हैं सो फ्रॉम 13 डायमंड इट कुड बी एनी वन कार्ड। स्पेड में से अगर एक कार्ड लेते हैं सो इट कुड बी फ्रॉम 13 यू सिलेक्ट 1, या फिर वो कार्ड हो सकता है क्लब कार्ड। सो अगेन 13C1। सो देयरफॉर n of s is, it could be 13C1 or again 13C1, that is for diamond, or we could have one spade card, so again 13C1, और club card के लिए भी 13C1। So basically it is 4 times 13C1, and we know that 13C1 is 13, so it is 4 times 13, which is again equal to 52। So यहाँ पे पूरे पैक में से एक कार्ड लेना है, एंड यहाँ पे सूट वाइज अगर आप जाते हो तो भी हमारे पास ऑप्शंस तो 52 ही रहते हैं। सो इन बोथ केसेस n of s is 52। अब हम 7th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम 7.1। Box 1 contains 3 red and 2 blue marbles, while box 2 contains 2 red and 4 blue marbles. A fair coin is tossed. If the coin turns up heads, a marble is chosen from box 1, and if it turns up tails, a marble is chosen from box 2. Describe the sample space. तो यहाँ पर हम डायग्रामेटिकली लिख लेते हैं, ये box 1 हो गया हमारा, and we have box 2. box 1 में है 3 red marbles,
they have indicated as R11, R12, R13 and 2 blue marbles है इसमें, so B11 and B12. Box 2 में we have 2 red marbles, so R21, R22 and 4 blue marbles, so B21, B22, B23 and आखिर में B24. अब आगे कहा गया फेयर कॉइन इज टॉस्ड. अब अगर हम फेयर कॉइन टॉस करते हैं, ये हमारा कॉइन हो गया, तो या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स. अगर हेड्स आता है, देखिए इफ द कॉइन टर्न्स अप हेड्स अ मार्बल इज चोजन फ्रॉम बॉक्स 1. तो हेड आने पर मार्बल सिलेक्ट होगा बॉक्स 1 में से, और टेल्स आने पर मार्बल सिलेक्ट होगा बॉक्स 2 में से. तो इसका सैंपल स्पेस हमें डिस्क्राइब करना है. तो अगर हेड्स आता है तो हेड्स के बाद इनमें से एक मार्बल सिलेक्ट करना है. मींस वी कैन हैव HR11, देन वी कैन हैव HR12 और HR13, या फिर आएगा HB11 या फिर HB12. और अगर टेल्स आता है तो बॉक्स 2 में से इनमें से एक मार्बल सिलेक्ट करना है. सो विद टेल्स वी हैव दीज मेनी ऑप्शंस. सो TR21, TR22, देन वी हैव T, उसके साथ B21, T, देन वी हैव B22, देन T के साथ B23 एंड T के साथ आखिर में B24. So if we count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So therefore we could say N of S is equal to 11. अब question number 8 discuss करते हैं from 7.1. Consider an experiment of drawing 2 cards at random from a bag containing 4 cards which are marked 5, 6, 7 and 8. Find the sample space if the cards drawn are drawn with replacement and second case without replacement. So basically हमारे पास 4 cards है जिन पे numbers लिखे गए हैं 5, 6, 7 and 8. तो suppose ये हमारे 4 cards हो जाते हैं and we have the numbers 5, 6, 7 and 8. तो 2 cards draw करने हैं हमको. So we have 2 cards to be drawn. अब 2 केसेस दिए हैं, हमें दोनों केसेस में सैंपल स्पेस लिखना है. फर्स्ट है द कार्ड्स आर ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट एंड सेकंड इज विदाउट रिप्लेसमेंट. तो अगर हम पहले बात करते हैं विथ रिप्लेसमेंट की, तो देखें सैंपल स्पेस क्या आएगा. सो इफ वी टॉक ऑफ विथ रिप्लेसमेंट देन सैंपल स्पेस वुड बी, सपोज आपका पहला कार्ड आता है 5. अब 5 ड्रॉ करके अब वापस 5 अंदर डाल देते हो राइट इस ग्रुप में. तो सेकंड कार्ड 5 के साथ अगेन 5 भी आ सकता है, देन 5 के साथ 6 भी आ सकता है, 5 के साथ सेकंड कार्ड आपका 7 भी आ सकता है, एंड 5 के साथ सेकंड कार्ड आपका 8 भी आ सकता है. दिस इज व्हेन द फर्स्ट कार्ड इज नंबर 5. वैसे ही फर्स्ट कार्ड अगर नंबर 6 है तो आपने 6 ड्रॉ किया और 6 को वापस अंदर डाल दिया. तो 6 के साथ अगेन वी कैन हैव 6, 5, फिर 6 के साथ वापस 6 आ सकता है. 6 के साथ सेकंड कार्ड कुड बी 7, with 6 as the first card, second card could also be 8. Similarly 7 and 8 के लिए भी ये true है. So with 7 you can have 5, with 7 as the first card, second card 6 हो सकता है, 7 के साथ 7 भी repeat हो सकता है, and 7 के साथ 8 भी आ सकता है. और आखिर में if the first card drawn is 8, then with 8 you can have 5, with 8 you can get 6, with 8 you can get a 7 and with 8 you can get an 8 because यहाँ पे with replacement है. तो यहाँ पे अगर हम देखें n of s is equal to 16.
और सेकंड केस कहा गया है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो पहला कार्ड जो ड्रॉ किया है वो हमें वापस रिप्लेस नहीं करना है। सो विदाउट रिप्लेसमेंट में जो सैंपल स्पेस होगा, तो अगर हमारा फर्स्ट कार्ड 5 है लेकिन इसे हमें रिप्लेस नहीं करना है, तो 5 के साथ सेकंड कार्ड कुड बी 6, with 5 it could be 7, with 5 it could be 8, and if our first card is 6 then with 6 we can get 5. 6 के साथ 6 नहीं आएगा, 6 के साथ 7 आ सकता है, 6 के साथ 8 आ सकता है। फर्स्ट कार्ड अगर 7 है तो 7 के साथ 5 भी आ सकता है, 7 के साथ 6 भी आ सकता है, 7 7 नहीं आएगा, 7 के साथ 8 आ सकता है, एंड लास्ट में विद 8 यू कैन गेट अ 5। 8 के साथ 6 भी आ सकता है एंड 8 के साथ 7 भी आ सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें n ऑफ s विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर n ऑफ s आता है 12।